Hello students, in today's video we are going to read about the non-farm activities in Palampur. In previous video we had discussed about the farming activities in Palampur. We had seen that there are 450 families and many of them are working engaged with the farm activities. So today we are going to read non-farm activities. So in Palampur, only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. तो नॉन फार्म एक्टिविटी यानी क्या होगा, जो एग्रीकल्चर वर्क या फार्मिंग वर्क से अलग जो एक्टिविटीज़ की जाती है उसको बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़. तो उसमें सबसे पहला क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डेयरी, द कॉमन एक्टिविटी. आप सभी जानते हो डेयरी के बारे में. सम पीपल रेयर द कैटल्स like cow, buffalo, goat, etc. So we are reading about the dairy. So dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kind of grass and the jowar and bajra, and that grows during the rainy season. This milk is sold in Raiganj, in nearby large village. Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling center at Raiganj, from where the milk is transported to far away town and cities. तो डेयरी एक्टिविटीज़ में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पीपल किस तरीके से एंगेज हैं कि वो बफेलो वगैरह रेयर करते हैं और उसको उससे जो मिल्क है कलेक्ट करके फिर रायगंज में लाते हैं, और वहाँ पे कुछ ट्रेडर्स ने चिलिंग सेंटर्स और कलेक्शन सेंटर ओपन किए हुए हैं और वहाँ से फिर आगे के लिए मिल्क शिफ्ट किया जाता है. तो एक नॉन फार्म एक्टिविटी हमने क्या देखी, डेयरी. सेकेंड वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. So at present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories, in the towns and cities, manufacturing in Palampur involve very simple production method and are done on a small scale. तो small scale industries जो है वो यहाँ run up की जाती है. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Rarely are laborers hired. तो यहाँ small scale industry लोगों ने लगाई हुई है, बहुत कम लोगों ने लगाई है, पर और साथ ही साथ यहाँ पे जो वर्क किया जा रहा है, ये इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई गई है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम एट होम और इन द फील्ड्स. और यहाँ पे वर्क कौन करते हैं, फैमिली मेम्बर्स ही वर्क करते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि लेबर्स हायर करने पड़ते हैं. यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिस्री लाल. मिस्री लाल हैज़ परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट अप इट ऑन हिज फील्ड. एंड शुगर केन क्रशिंग was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machine these days. Mishri Lal also buys sugar cane from other farmers and processes it into jaggery. The jaggery is then sold to traders at Shahpur. In the process, Mishri Lal makes a small profit. तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन्होंने मिश्री लाल ने क्या लगाया हुआ है, शुगर केन क्रशिंग मशीन, और इसका यूज़ करने के बाद उसने कुछ प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट किया हुआ है. थर्ड, वी विल डिस्कस द शॉपकीपर. तो जैसे अदर विलेजेस में भी शॉपकीपर्स होते हैं, वैसे ही पालमपुर में भी शॉपकीपर्स हैं. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर.
The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in the cities and sell them in village. We'll see small general stores in the village selling wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some cloth. Few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of a space to open a small shop. They sell eatables. तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्होंने कुछ शॉप्स खोले हुए हैं और शॉप्स में तरह तरह की चीज़ें वो सेल करते हैं। और कुछ लोग जो जिनका घर बस स्टैंड के पास है उन्होंने अपने घर के ही सामने जो स्मॉल स्पेस है उनमें ही उन्होंने छोटा सा शॉप ओपन करके रखा है और वहाँ पे ईडेबल्स आइटम सेल करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है करीम का, जो एक शॉप चलाता है। क्या शॉप चला रहा है वो? कंप्यूटर क्लासेस, क्योंकि रिसेंटली जो कंप्यूटर कोर्स हैं वो बहुत ही लोग करना चाहते हैं और मैक्सिमम पर्सन्स जो है वो ये कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं। सो ही करीम बॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लास इन फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. तो हम लोगों ने अभी किस चीज़ का एग्जाम्पल देखा? शॉप का। हम क्या देख रहे हैं? नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में उसमें हम लोगों ने किस किस चीज़ को देखा? सबसे पहले डेयरी के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। उसमें हम लोगों ने देखा था मिश्री लाल ने क्या सेटअप किया हुआ है, शुगर केन क्रशिंग मशीन। थर्ड हम लोगों ने देखा था शॉपकीपर्स भी हैं पालमपुर में। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। So there are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. Rickshaw wala, tange wala, jeep, tractor, truck drivers and people driving the traditional bullock cart and bogie are people in the transport services. They ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it. The number of people involved in transport has grown over the last several years. तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा जिसमें ग्रो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो कौन सा सेक्टर है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है किशोरा का। तो किशोरा क्या था? एक फार्म लेबरर था और उसको भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था उसकी जो फैमिली नीड्स हैं उसको फुलफिल करने में वेजेस के थ्रू। फ्यू इयर्स बैक किशोरा टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless household. Kishora bought a buffalo with his money. He now sell his buffalo milk. Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and used it to transport various items. Once a week, he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter or something. Sometime he goes to Shahpur with the load of jaggery or other commodities. Every month he gets some work in transport. As a result, Kishora is able to earn money than what he used to do some years back. यहाँ पे किशोरा का एग्जाम्पल दिया है कि उसने लोन लेकर बफेलो परचेज किया था। वो मिल्क सेल करता था, बट उसने आगे क्या किया है कि उसने बफेलो का यूज़ ट्रांसपोर्ट करने में किया। उसने वुडन कार्ट उससे लगा लिया और अटैच किया और इस तरीके से उसकी अर्निंग अच्छी हो जाती थी। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोगों ने जो डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी विलेज में, यहाँ पे
एक विलेज पालमपुर का दिया हुआ था, और कॉमनली ये सारी चीज़ें हम लोग किसी भी विलेज में देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस चैप्टर में हमने देखा, देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर दे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल भी देखे थे, कौन से हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकेंड वन इज एंड वर्किंग कैपिटल, एंड वी हैड सीन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विच आर दे खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, कैश क्रॉप्स। ओके, लेबर भी हम लोगों ने देखे थे, और साथ ही साथ हम लोगों ने नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ये मैक्सिमम जो लोग हैं, मोर 75% पर्सन वर एंगेज्ड विथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वाइल 25% आर एंगेज्ड विथ नॉन फार्म सेक्टर। एंड वी हैड रीड इन दिस वीडियो अबाउट द नॉन फार्म एक्टिविटीज़, और इन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या हो रहा है कि लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है, और इससे वो अपना वर्कआउट अच्छे से कर पाते हैं, और साथ ही इससे डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट में कई तरह की हेल्प मिलती है। तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ। आई होप you understand it in better way.